भारतीय सेना का नाम ही काफी है हर हिंदुस्तानी का गर्व से सीना चौड़ा करने के लिए। सैनिक ही राष्ट्र के असली नायक होते हैं। वे निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करते हैं। सैनिक हमारे राष्ट्र का गौरव है और मुझे खुशी है कि आज हम सभी के बीच एक एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर मौजूद हैं और वह है श्री उमेद सिंह राठौर जी। मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है आप सभी को यह बताते हुए कि श्री उमेद सिंह राठौर जी ने भारतीय सेना में सन 1971 की अहम युद्ध, जिसे हम सभी इंडो पाक वॉर 1971 के नाम से जानते हैं, उस युद्ध में आपने अद्भुत योगदान दिया है। जैसे कि एक आम कहावत प्रचलित है कि एक जवान कभी रिटायर नहीं होता, उपयुक्त पंक्तियां श्री उमेद सिंह जी के लिए बिल्कुल खरी उतरती है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for our respected dignitaries. कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें ज़मीन पर नहीं, पूरा आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समुद्र की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समुद्र की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and a very good evening to ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you.
I, Swati Shekhawat, with my co-host Ms. Khushbu Shekhawat and Mrs. Ekta Bes, welcome you all on behalf of whole Green Valley Montessori School family on this Anand Utsav, thus Paryavaran Sanrakshanam. Thank you all for giving us your prize time. मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी श्री दयाल सर का, जो कि स्कूल की डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ मैं शुक्रिया करना चाहूँगी स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस उर्मिला शेखावत मैम का, जिनकी मेहनत का नतीजा आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए देखने को मिल रहा है. We thank you, sir and ma'am, for giving us this opportunity and to present this program today. Today, we will be celebrating environment and nature, remembering, acknowledging and admiring the achievements of our institute. So sit back and relax, because this is going to be the most amazing experience for all of you. Honorable Chief Guest, respected Principal Ma'am and respected teaching and non-teaching staff, and my dear students. We take pride in standing before you and speaking of the occasion of Anand Utsav 10 with the theme of Paryavaran Sanrakshanam of our school. आज हम आनंद उत्सव 10 पर्यावरण संरक्षणम मना रहे हैं. परि का आशय चारों ओर तथा आवरण का आशय परिवेश है. दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ भौतिक वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है. पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है. प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है. वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की तरह धरती का जीव चक्र भी समाप्त हो जाएगा. आज के यह कार्यक्रम के जरिए हम हमारे पर्यावरण के अभी के हालात को समझने की कोशिश करेंगे. Before the launch, let me first acknowledge the presence of some of our eminent guests. Darkness cannot be wiped out by blackness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression and division in society and lead us towards the growth, liberty and equality. Now, we are going to witness our traditional lamp lighting ceremony as a tribute to Ma Saraswati to bestow her warm blessing upon us to achieve additional academic and future prosperity. And we pray the Goddess of Wisdom for her blessing by kindle this lamp. Now, I would like to invite our respected dignitaries, our honorable guest, Shri Soham Vahal Sir, our chief guest, Mrs. Ashmita Virsit Ma'am, our school chairman, Shri Umed Singh Rathod, and our chief guest Nagesh Kothare sir on stage for the lamp lighting ceremony. Give a big round of applause for our respected dignitaries. अच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. शुक्लां ब्रह्मविचारिणीं
request our director, Dayal Singh sir, to felicitate our honorable guest, Shri Soham Wahal sir, with the token of love. Now, I would like to request our principal, Mrs. Urmila Kanwar Shekhawat ma'am, to honor our chief guest, Mrs. Asmita Birsit ma'am, with token of love. Thank you, ma'am. Now, again, I would like to request our director, Dayal Singh sir, to felicitate our chief guest, Shri Umed Singh sir, with the token of love. Thank you, sir. Now, I would like to request our principal, Mrs. Urmila Kanwar Shekhawat ma'am, to honor our chief guest, Ashran Kanwar ma'am, with the token of love. Now, again, I would like to request our director, Dayal Singh sir, to honor our chief guest, Nagesh Kothare sir, with the token of love. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं अब आप सभी अतिथिगण से कहना चाहूँगी कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। दान देना, विश्व में सम्मान देना, मात अनुपम छवि तुम्हारी, निर्मला निश्चल सुखहारी, सर्वदा तुम न्यायकारी, निष्कपट मन दान देना, शारदे वरदान देना, शारदे वरदान देना। Vandana means praising or surrender to our God. We wish you to bestow your glory upon us. Now, let's start this beautiful evening and this event by taking the name of Lord Ganesh and Ma Saraswati and request them to make this event successful and bless us. Now, allow me to welcome our pure and beautiful girls group to begin this function on this blissful event with the Saraswati Vandana. Please give a big round of applause and welcome them to the stage. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि
सजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि सजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि And through this Saraswati Vandana, we all are get the blessing of माँ सरस्वती. Thank you girls. अब सरस्वती माँ के आशीर्वाद से हम अपनी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. करता करे न कर सके, शिव करे सो होय, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई. Everything comes from nothing and goes back to nothingness. This nothingness, which is the source of all creation, is what is being referred to as Shiva. As you all know, there is no need to introduce our God Shiva, because Shiv is not just a name, it is a sentiment, an emotion. Shiv is all and there is nothing beyond him. Shiv is the physics of universe, the scared void which is endless. So now let's start our first performance on Namo Namo song, where we will see the master of fertility and medicine and the lord of cattle Shiva, and our students will depict his combined role and complementary qualities. शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो. हम तो दीप बने झिलमिलते तेरे चरणों में जलते हैं, हम तो दीप बने झिलमिलते तेरे चरणों में जलते हैं. तेरी रहमत के ध्रुव तारे बन पुष्प हृदय में खिलते हैं, तेरी रहमत के ध्रुव तारे बन पुष्प हृदय में खिलते हैं. सुख की खुशबू सृष्टि में है तो क्या हम अंधकार भूल गए, सुख की खुशबू सृष्टि में है तो क्या हम अंधकार भूल गए. यह दिव्या ओज यह दिव्य दिवा सब तेरी कृपा से पलते हैं, यह दिव्या ओज यह दिव्य दिवा सब तेरी कृपा से पलते हैं. नमस्ते, मेरा नाम पार्थ और मैं पूनम. आज हम अपने ग्रुप के साथ इस पालनहार शिव जी को नमन करने एक नृत्य के साथ आ रहे हैं. नृत्य का नाम है तांडव और नमो नमो जी शंकरा. धन्यवाद. केवलं यदन्विताम्बुजं
शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा सर पे हाथ रख तेरा दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा का तूने खुद पिया It was a very indeed an emotional performance.
Really, you all are put your heart and soul into the devotion of Lord Shiva. Thank you for this beautiful performance. So, ladies and gentlemen, give a big round applause for our students. Ladies and gentlemen, please give a big round applause for our students. मैं सभी लेडीज़ एंड जेंटलमैन से निवेदन करना चाहूँगी कि यहाँ पे कूपन्स अवेलेबल हैं, तो आप परचेज़ करके हमारे राइट साइड में एक बॉक्सेस रखे हुए हैं 2, वहाँ पे डाल सकते हैं। यस, आप अभी कूपन परचेस कर सकते हैं और उसको राइट साइड पे जो 2 बॉक्स रखे हुए हैं उसमें आप डाल सकते हैं। थँक यू. पृथ्वीची ओळख लोनली प्लॅनेट म्हणून केली जाते. याचे कारण हा एकमात्र ग्रह आहे जेथे जीवन संभव आहे. जीवनाची सुरुवात साधारणपणे 350 कोटी वर्षापूर्वी एकपेशीय सूक्ष्मजीवांच्या रूपात झाली असा अंदाज आहे. आधी जिवंत कालांतराने परिस्थितीनुसार बदल घडत गेले व या उत्क्रांती चक्रातून जैवविविधता निर्माण झाली. मानव हा प्राणी सर्वात नंतर म्हणजे 20 ते 25 वर्षापूर्वी अवतरला. पृथ्वीवरील हा निसर्ग श्रावण महिन्यात अधिकच खुलून येतो, हिरवागार होतो. श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे. क्षणात येई सरसत फिरसे क्षणात फिरुनी ऊन पडे या ओळींची प्रचिती येते. अशा सुंदर निसर्गाचे वर्णन करणारे गीत घेऊन काही चिमुकले आता आपणासमोर येत आहे. चला तर मग जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आणि निसर्गाला जवळून अनुभवूया. तरुणांच्या मखमालीचे त्या सुंदर मखमालीवरती फुलराणी ही खेळत होती. अगं थांब थांब, काय झालं आहे तुला? का अशी रंगली आहेस निसर्गाच्या कल्पने? कारण माझे चिमुकले मित्रमैत्रिणी आपणा सर्वांना निसर्ग सफर करून आणणार आहेत. कसं? ते आपणा सर्वांसमोर नृत्य सादर करणार आहेत. हिरवा निसर्ग हा भोवतीने जीवन सफर करा मस्तीने. चल मी पण येते. हो चला आपण सर्वजण जाऊया. जीवन सफर करा मस्तीने मन सरगम छेड़ा रे. जीवनाचे गीत गारे धुंद भारे. फिरवाने दरगाह भवतीने जीवन सफर करा मस्तीने मन सरगम छेड़ा रे. जीवनाचे गीत गारे धुंद भारे. मंद मंद वाहते शराबी करी अशी चिंब नाहते. गुलाबी हवाशी मंद मंद वाहते शराबी करी अशी चिंब नाहते. सुगंधी फुलांना नशा आज आली तळाशी पिला तळू प्रीतीने. हिरवाने दरगाह भवतीने जीवन सफर करा मस्तीने मन सरगम छेड़ा रे. जीवनाचे गीत गारे धुंद भारे.
कुणी सोबती मला मिळाया हवे असे नव्या संगीतातले तराणे नवे असे कुणी सोबती मला मिळाया हवे असे जन्म हे जगावे विश्व हे बघावे एक रूप भावे संगतातीने ओ हिरवाने दरगहा भवतीने जीवन सफर करा मस्तीने मन सरगम छेडा रे जीवनाचे गीत गारे धुंद वारे हो नवे पंख पसरा उंच उंच लहरा नवे पंख पसरा उंच उंच लहरा फिर फिर जारे गीत गारे धुंद वारे हो हिरवाने दरगहा भवतीने जीवन सफर करा मस्तीने मन सरगम छेडा रे जीवनाचे गीत गारे धुंद वारे खरेच खूप अप्रतिम सादरीकरण केलं या चिमुकल्यांनी. तर मंडळी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या यांच्यासाठी. आणि अजून एक वेळा जाणीव करून दिली की निसर्गावर प्रेम करा, निसर्गाजवळ राहा, कारण ते आपल्याला कधीही अपयशी करणार नाही. बच्चा है खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है. तो चलिए देखते हैं वो खुशनसीब कौन है. For this, I would like to request our chief guest, Shri Umed Singh Rathore sir, to come to stage and announce our 7th prize of today's lucky draw. The 7th prize of today's lucky draw, and the lucky draw number is 003. Again I'll repeat, the lucky draw number is 003. And the winner is Mohini Kushwaha. The 7th prize of lucky draw winner is Mohini Kushwaha. Mohini, come on the stage. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for today's 7th prize lucky draw. थे जहाँ चाहा वहाँ रो लेते थे, जहाँ चाहा वहाँ हंस लेते थे. कभी पेंसिल गुम हो जाती थी तो कभी किसी की रबर चुरा लेते थे, कभी झूठ बोला करते थे, फिर भी मन के सच्चे थे. इसीलिए तो हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे. Now it's time to call our junior KG kids with their energetic and enthusiastic dance performance on song Chatte Batte. So why to wait? Let's welcome them with a great round applause. रिश्तों से बड़ी चाहत और क्या होगी, दोस्तों से बड़ी इबादत और क्या
होगी। जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, उसे जिंदगी से और शिकायत क्या होगी। तो ऐसे ही दोस्ती के प्यारे से पल आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं जूनियर केजी के बच्चे चट्टे बट्टे सॉन्ग के साथ। कभी लड़े लड़े से थे, कभी अड़े अड़े से थे, कभी भीड़े भीड़े से थे, बस यूं ही जुड़ गए। थोड़े थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे 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 हैं। ये तो मुर्गियों के चूजे से संग एक दूजे के इधर उधर इधर भीतर दौड़ते फिरे। ये तो होली के रंग है, अलग है पर संग है, चेहरे पे झलके तो सब लगे एक से। कहीं गालों पे लाली है, कहीं जेब खाली है, फर्क इनमें है बड़े, इन्हें फर्क ना पड़े। थोड़े थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे 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 हैं। ये जलेबियों के टुकड़े हैं, चाशनी से उभरे हैं, टेढ़े मेढ़े गर्मा गर्म पर मीठे भी हैं। ये तो हवा के झोंके हैं, कब मुट्ठी में बंद होते हैं, मर्जी जिधर मुकर उधर सरसर बहे। कहीं मम्मी की थपकी है, कहीं कांटों पे झपकी है मंजिलें जुदा पर राह एक है। थोड़े थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे 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 हैं।
कहीं जेब खाली है। फर्क इनमें इतना है, इन्हें फर्क ना पड़े। थोड़े थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये गीत सुनकर आप सबको अपनी बचपन की याद तो आई होगी। आई है या नहीं आई है? इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने इतना प्यारा सा परफॉर्मेंस दिया है, तो एक बार चीयर अप तो बनता है ऑडियंस। हिप 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 हिप। अरे पेरेंट्स थोड़ा सा चीयर अप कीजिए अपने बच्चों को। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, जब तक जल है सुरक्षित तब तक कल है सुरक्षित। हम सबको जल बचाना है, आने वाले कल को सजाना है। जल ही जीवन है। जल की होगी बर्बादी तो नहीं होगी कोई आबादी। आप सब यही सोच रहे हैं ना कि अरे अचानक इन्हें क्या हो गया, आनंद उत्सव के बीच में रैली वाले नारे लगा रहे हैं। चलिए तो मैं बता देती हूँ कि हम भूले नहीं हैं कि हम अभी आनंद उत्सव में हैं, लेकिन हम सब ये नारे जरूर किसी रैली के खत्म होने के बाद में तो पक्का भूल ही जाते हैं। सही कहा। जीवन का आधार है पानी, किसान का रोजगार है पानी, छोटे पौधे से लेकर विशाल वृक्ष के अंदर दौड़ता हुआ खून है पानी। सैकड़ों जीव जंतुओं का अनेक रूप से घर है पानी, मेहमान आने पर पूछे जाने वाली सबसे पहली चीज है पानी। कुदरत का बेशकीमती करिश्मा है पानी, इंसान की समझ के परे है पानी। पानीयम परम लोके जीवानाम समृतम, पानी यस्य प्रदाने तृप्ति भवति पांडव, पानी यस्य गुना दिव्यः परलोके गुणावः। तो अब ये समय है एक खूबसूरत से प्रदर्शन की। पानी और उसकी दास्तां बयान करने के लिए कक्षा चौथी की छात्राओं की ओर से तो करिए जोरदार तालियों से स्वागत ऑडियंस की तरफ से प्रणाम। मेरा नाम है रुचिता और मेरा नाम है गुंजन। गुंजन, तुम्हें पता है पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता। हाँ, दादाजी ने नदी में पानी देखा था। हाँ, और पिताजी ने कुएं में पानी देखा था और हमने नल में पानी देखा था। अब हमारे बच्चे कहाँ पानी देखेंगे? हाँ, ये तो सोचने की बात है ना। जल है जीवन का आधार, जल को ना फेंको बेकार, जल से ही सब जीवन पाते, जल बिन जीवित ना रह पाते। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी
drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop. चलो बचा ले ये धरोहर पुरानी, ये तेरा मेरा पानी. Drip, drop, drippity drop. चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी. Drip, drop, drippity drop. पूछे कि धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी. पानी, स्वच्छता और पानी, पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी. सुंदर तरीके से इन्होंने पानी का महत्व बताया है. वैसे तो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि पानी क्यों इतना महत्व है. हम सभी जानते हैं कि हमको पानी किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसके सारे इम्पोर्टेंस हम लोग जानते हैं. लेकिन तो भी इस सॉन्ग को सुन के और इस परफॉर्मेंस को देख के हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बिना पानी का जीवन नहीं है. तो पानी कितना संभल के यूज़ करना चाहिए, ये हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए. कहीं हूँ बंजर, कहीं हूँ हरियाली, कहीं संभाले पानी को तो कहीं जंगल का बोझ मुझ पर भारी. बहुत इमारतों की नींव हूँ मैं, बहुत किसानों की आस हूँ मैं, तो कभी किसी भटके की राह हूँ मैं. गिरना है मुझ में, संभलना है मुझ में, छोड़ देगी जब सांसें साथ तो समा जाना है मुझ में. With this beautiful line, I would like to call our next performance from senior KG kids on Dhak Dhak Dharti. Please cheers them with a big round applause. My name is Gopal and my name is Karki. Do you know about biodiversity? What is it made of? Let me tell you. All the birds, animals, trees and plants create the biodiversity by living together. And this biodiversity, which is the heart of the earth, I want to say something to us. This biodiversity present by great senior KG kids. धरती का दिल क्या बोली धक 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 धक. खुद जी लो सबको जीने दो, खुद जी लो सबको जीने दो, मेरे लिए जरूरी सब. ओ धरती का दिल क्या बोले धक 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 धक. चींटी हो या हाथी हो सब मेरे जीवन साथी हो. अंबर चिड़िया पानी मछली बातें यही दोहराती हो. घास फूस या फूल और तितली, जंगल नदिया और पर्वत बोल रहे हैं मिलकर सारे, बोल रहे हैं मिलकर सारे, एक और वो और सब. धरती का दिल क्या बोले धक 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 धक. शेर है
पर नन्हे कीड़ों से जंगल बनते। एक मधुमक्खी गुनगुन करती, मौसम के चक्कर चलते। कुछ कॉरल्स की जंजीरों से महासागर है काबू में। बर्फ कहीं जो पिघले जरा सी, नदियाँ और झरने बहते। इनसे हम हैं और जहाँ है, हो इनसे हम हैं और जहाँ है, समझेंगे हम कब। धरती का दिल क्या बोले, धक 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 धक। को सुन के कुछ लाइनें याद आ रही है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि यह धरती माँ के समान है, इसका हरदम सम्मान करें। धरती ही जीवन का आधार है, इसकी सुरक्षा के बिना सब बेकार है। आओ ये हम सबको समझाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं। आओ पर्यावरण बचाएं और धरती माँ का कर्ज चुकाएं। अनाउंसमेंट कि अगर कोई फ़ोटो लेना चाहता है, जैसे किड्स अगर अपने ड्रेस अटायर में फ़ोटो लेना चाहता है तो राइट साइड में एक सेल्फी पॉइंट रेडी किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। स्टेप फॉरवर्ड इन द बाइगॉन एकेडमिक ईयर, इट इज़ अ टाइम फॉर लुकिंग बैक to the past for assessing our entire performance and development so far for the better tomorrow, and it will become possible only with the support of our principal ma'am and sir, our teaching and non-teaching staff, and obviously all my lovely parents. Now I would like to call upon our principal to the stage for her address and words of wisdom. Give a big hand for the brain behind the adorable function, and to the woman who need no introduction, everyone's favorite, the most versatile personality, Mrs. Urmila Kanwar Shekhawat ma'am. Good evening everyone. Yes, good evening everyone. Good evening and namaste to one and all present here. Today is our honorable chief guest, Mr. Soham Vayal ji, Administrator, SIDCO, Aurangabad, and Deputy Collector, Mrs. Asmita Virsit ji, Assistant State Officer, SIDCO, Mr. Umed Singh ji, Chairman, Green Valley, Mr. Nagesh Kuthare ji, Upsarpanch Tisgaon, Mr. Dayal Singh, Director, Green Valley, all trustee members, parents, teaching, non-teaching staff, ladies and gentlemen, and my dear children. A very warm welcome abroad to everyone arrived here today. As we approach to the end of this academic year and our 10 years of service toward providing quality education, we take this opportunity to thank the Almighty God for His abundant blessing, guidance from our chairman, director, all trustee members, parents, teachers and well-wishers. With your permission, I now present the annual school report of year 2022-23 with our achievements registered by Green Valley School since the last annual day celebration. First, I would like to talk about academics. We are proud to acknowledge that we had good results achievement in academics, co-curricular and extra co-curricular activities throughout the session. I proudly place before you the achievements of our students and progress of our school where all our staff is committed and dedicated. Green Valley family comprises of 20 trained, well-experienced and dedicated teachers and non-teaching staff, and we duly appreciate the tremendous cooperation on the part of everyone associated with this institution who has showed their best to mold our students to work hard to make their dreams and aspirations come true. As a part of enrichment program,
Various workshops and seminars are periodically organized throughout the years for the overall development and enhancement of skills in teachers as well as students. Various competitions like calligraphy, drawing, painting, sketch, singing, dancing, fancy dress, spell bee, quiz competitions, diya painting, chess, etc. are conducted on regular basis for overall development of kids. Students are encouraged and given proper counseling and guidance regarding day-to-day life problems, career choice, sports, GK, social networking, studies, exams, and many more. We are highly involved in maintaining culture and heritage of our nation by celebrating it in our school. Celebrating shares the happy moments together and spread joy all around is the vital aspect of Green Valley, which we follow every year religiously. We celebrate Shivaji Maharaj Jayanti, Ashadi Ekadashi, Guru Purnima, Eid, Janmashtami, Ganpati Utsav, Diwali, Christmas, Navratri, Dandiya and other religious festivals and spread the message of unity in diversity among students. Education related festivals like Hindi Divas, Science Day, Mathematics Day, Yoga Day, Environment Day, Doctors Day are also celebrated with great joy at Green Valley. Independence Day, Republic Day, Teachers Day, Children's Day, Investiture ceremony are also celebrated with great reverence and fervor. We remember our freedom fighters by celebrating their birthdays and death anniversaries. Sports teaches us how to lose, but it also teaches us how not to be a loser. Every morning, boys and girls are called for different sports activity at school ground. They are taught various physical exercise and sports. We promote our students by participating in various sports like Kho-Kho, Kabaddi, Cricket, Football under different age categories like under 10, under 12, under 15. Many students of grade 1st to 9 participated in Olympiad exams in subjects like Maths, Science, English, GK. We are pleased to announce that 15 students of them badged Medal of Excellence and 16 students badged Distinction of SOF Olympiad exam. To discuss development and weakness of children, every year we organize 4 to 5 parent-teacher meeting where we talk about actions to be taken by teachers and parents for overall development of child. Our school organizes field trips and educational tours which help students to gain knowledge and augment their academic learning, translated behind the confines of a classroom in joy company of peer and friends. This year we visited Pune with students of class 7th and above. Kids enjoyed trekking at Sinhagad Fort and boating at Panshet Dam. They also enjoyed night camping in tent. We also visited Science Park to acquire knowledge and magics of science around us. Green Valley organized dental checkup camp. The aim of camp was to check, regulate and maintain the dental wellness of students and spread awareness regarding dental health and hygiene. Protecting the environment is really important to everyone's welfare, for our children as well as that for our future generation. We encourage our kids for protecting and conserving the environment and improving the quality of human life. Environment and nature promotes critical and creative thinking skill and inspire kids to become more engaged with their communities. This year, our students and teachers along with Territorial Army and State Forest Department
planted 11,400 saplings. Keeping in mind importance of environment and nature in the students' life of Green Valley, we are going to present different colors of nature in this Anand Utsav 10. This year, our theme of annual function is environment protection with slogan Paryavaran Sanrakshanam. Coming year, by the month of October, we will try to shift our school in new campus. We will try to create peaceful environment and separate classroom for different co-curricular activities like dance, music, IT, library and many more. There are many more planning for next year, but now it's not time to discuss those. As we have passed through unprecedented crisis situation in year 2020, we have confidently overcome all difficulties, will and epics pay the way of betterment of education and society. Before I conclude, let me assure you that along with academics, events keep students engaging and various co-curricular and life skill activities applied education. Remedial teaching, extra classes, revision, class tests, assignments, project works and end of the term exam have kept students involved in academics throughout the year. Our students not only excel in academics but also very good in extra co-curricular activities. I am extremely glad at the fact that our students and teachers are leaving no stone unturned in working towards the advancement of our school. We also remain grateful to all parents for reposing their unparalleled trust in us, which propels us to march ahead with great commitment and enthusiasm. We will continue to offer better provision of education for our community. Let me conclude this report by the words of great personality Dr. APJ Abdul Kalam. Learning gives you creativity, creativity gives you thinking, thinking provides knowledge and knowledge makes you great. Thank you so much. Of us. We are really grateful to you for this kind gesture. Thank you very much, ma'am. Sixth prize of today's lucky draw. Lucky draw, the coupon number is 252. The coupon number is 252 and the name of winner is Ojasvi Ankush Nimone. I'll repeat again, the name of winner is Ojasvi Ankush Nimone. Congratulations my co-host Khushbu ma'am to continue the further program. भारतीय प्राचीन इतिहास जैसे कि पुराण, वैद्य व धार्मिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत में पंच तत्वों का उल्लेख किया गया है। इन पंच तत्वों में प्रकृति के सबसे शक्तिशाली वस्तुओं को रखा गया है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंच तत्वों से मिलकर मानव शरीर की रचना, उसका जीव व मृत्यु निर्भर है। पहला तत्व है पृथ्वी। इस मानव शरीर की रचना में पृथ्वी का अहम योगदान मानते हैं। किसी भी जीव का प्रथम स्पर्श पृथ्वी पर ही तो होता है। प्रत्येक प्राणी की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पृथ्वी पर अनेक पदार्थ उपलब्ध है, इसीलिए पंच तत्वों में इसे अव्वल दर्जे पर रखा गया है। जल, जीव की उत्पत्ति दोनों ही संसाधनों से, चाहे वो विज्ञान हो या पुराण, जल से ही मानी गई है। जैसे कि मानव शरीर में भी 71% भाग जल का है, अर्थात जल हमारे शरीर का अत्यंत उपयोगी तत्व है। वर्तमान परिस्थितियों में यदि देखा जाए तो जल के लिए कुछ कहावतें प्रसिद्ध है, जैसे कि जल है तो कल है। पंच तत्वों में ऊर्जा का प्रतीक है अग्नि, चाहे दीप हो या लौ हो, सूरज का तपन हो या मानवीय मुख हो, सभी ऊर्जा के स्रोत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मनुष्य जल व भोजन के बिना कुछ दिन रह सकता है, किंतु वायु अथवा हवा के बिना एक पल भी नहीं। अगला तत्व है आकाश।
आकाश को पिता तुल्य बोला गया है। आकाश हमारी प्रकृति की सुंदरता, ऋतुओं के बदलाव, चांद सितारे, ग्रह नक्षत्र आदि दर्शाता है। But with the current rise in population, pollution and global warming, we should be asking ourselves, where are we heading to? How long will the world survive? With this, we understand for sustainable living on the planet Earth, more and more reliance has to be placed on efficient use of Panchatattva. So here are the students of grade 7th, 8th and 9th depicting the importance of Panchatattva through their dance performance. So hold your breath and welcome them with a huge round of applause. मैं सभी श्रोतागणों से विनंती करती हूँ कि वे सभी छात्रों का मनोबल जोरदार तालियों से बजाकर करें। सोचो तो क्यों है आज अंबर से तोड़ा सूरज को प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकर के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। It is our planet. We love the earth. It is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced. And my anus is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black. 불타오르네. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And all time may take us into different places, I will still be patient with you. And I want you to know. Feel the magic in the air. I live it in my all air. Ale, ale, ale. Feel the magic in the air. I live it in my all air. Ale, ale, ale. Feel the magic in the Magic system. Everybody, show
बरसाई है। चाहत की जरा कोई पूछे, कीमत क्या दिल ने चुकाई है। Well, that was a very beautiful and mesmerizing performance with a great message. हम सभी के लिए यहाँ ये संदेश था कि हमें ये पंच तत्वों का सम्मान करें। जोरदार तालियों से ऑनरेबल चीफ गेस्ट। मी अजिबात आपला जास्त वेळ घेणार नाही आहे. मला माहीत आहे आपण या ठिकाणी कशासाठी आलेला आहात. कार्यक्रम फक्त 25% झालेला आहे, 75% कार्यक्रम बाकी आहे. प्रत्येक कार्यक्रमाची एक पद्धत असते, एक चीफ गेस्ट असतो म्हणून त्याला बोलवले जाते. पण आपण भाषण करण्यासाठी निश्चितच आलेले ना, ऐकण्यासाठी निश्चितच आलेले ना, त्याची मला जाणीव आहे. या ठिकाणी आपल्या मुलांचा कौतुक पाहण्यासाठी आपण या ठिकाणी आलेला आहात. मला काही 2-3 गोष्टी आपल्यासोबत फक्त शेअर करायच्या आहेत. आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित या शाळेचे संचालक, प्रिन्सिपल, चीफ गेस्ट आणि इतर सर्व मंडळी. मित्रांनो, सर्वात कौतुकाचा क्षण कोणता असतो तर स्टेजवर आपल्या मुलांनी केलेला परफॉर्मन्स डोळे भरून पाहणे. या कार्यक्रमासाठी मागच्या 8 दिवसापासून 10 दिवसापासून सर्व टीचर्स, स्टुडंट्स आणि मुलांचे आईवडील प्रयत्न करत असतात. काही महिला भगिनींनी तर दुपारपासून आपले मोबाईल चार्ज करून ठेवले असतील. काहीने स्टेटस ठेवणे सुरू केले असेल किंवा काही जण उद्यापासून स्टेटस ठेवणार. आणि टाळ्या का वाजत नव्हत्या तर दोन्ही हातामध्ये मोबाईल होता. व्हिडिओ काढणं सुरू होतं, आपल्या मुलाचं कौतुक पाहायचं होतं. आणि कार्यक्रम बघता बघता आपला मुलगा कसा परफॉर्मन्स करतो, आपली मुलगी कशी परफॉर्मन्स करते, किंवा मुलीने सांगितलं असतं की पप्पा मी या गाण्यात भाग घेतलेला आहे, मम्मी मी या ठिकाणी हे गोष्ट करणार आहे, मी ते डान्समध्ये या ठिकाणी असणार आहे, माझा व्हिडिओ काढ. साहजिकच आहे, आपण भाग्यवान आहोत. आपण म्हणजे मुलाबद्दल मी बोलतो आणि पालकाबद्दल मी बोलतो. वाळूज महानगरमध्ये या ठिकाणी जेवढे काही पालक या ठिकाणी आलेले आहेत, मला वाटतं 2-3% फक्त मुंबई पुण्याचे असतील. बाकीचे आपल्या आजूबाजूचे औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद या ठिकाणचे आले असतील. बरोबर आहे. आपल्यापैकी किती पालक कॉन्व्हेंट शाळेमध्ये शिकलेले आहेत? कृपया हात वर करावा. मला 10, 12, 15, 20 हात वर दिसतात. आपल्याला कॉन्व्हेंट शाळेमध्ये शिकायला मिळालं नाही, पण आपली मुलं कॉन्व्हेंट शाळेमध्ये शिकतात, इंग्रजी बोलतात आणि वेगवेगळ्या कलामध्ये सहभागी होतात. यासाठी आपण भाग्यवान आहोत. तर आपल्या मुलांना या ठिकाणी ॲडमिशन मिळालं
आणि या ठिकाणी ते परफॉर्मन्स करतात, यासाठी मुलं भाग्यवान आहेत. काही गोष्टी शिकण्यासाठी असतात आयुष्यामध्ये. या कार्यक्रमाचं आजचं नाव आहे आनंदोत्सव. आपण हिंदू धर्मातले आहो. आपल्या भारतीय सण उत्सव आणि वेगवेगळ्या धर्माचे आनंद उत्सव साजरे करतो आपण. आनंद हा मानण्यामध्ये असतो. बघा, या ठिकाणी डान्स करताना मुलांच्या जो परफॉर्मन्स होता त्याच्यामागे एक कारण आहे. ते कारण असं आहे की मी काही गोष्टी जाणवल्या की या शाळेमध्ये केवळ ज्ञान मिळत नाही. कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्यामध्ये सरांचे आईवडील होते. म्हणजे त्यांनी आईवडिलाचा सन्मान केला, त्यांच्या हस्ते पूजन केलं, प्रत्येक वेळेस स्टेजवर घेऊन गेले, स्टेजवरून घेऊन आले. हे आपण शिकण्यासारखं आहे, आपल्या मुलांनी शिकण्यासारखं आहे. दुसरी गोष्ट, मनोरंजनातून ज्ञान आणि ज्ञानातून मनोरंजन. आत्तापर्यंत जेवढे काही परफॉर्मन्स झाले, एकही हिंदी सिनेमाचं कुठलंही गाणं नव्हतं. प्रत्येक गाण्यातून काहीतरी आपल्याला मेसेज दिलेला आहे. त्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये जर तुम्ही पाहिलं असेल, ऑडिओ क्लिपमध्ये आपण पाहिलं असेल, तर प्रत्येक ठिकाणी निसर्गाचं जतन कसं केलं पाहिजे, प्रत्येक गाण्यात एक एक मेसेज आपल्याला दिला होता, जो आपल्याला घरी घेऊन जायचा आहे. पूर्वीच्या काळी आपण मुलांना सांगत होतो की व्यसन करू नका, कचरा करू नका, पाणी वाया घालू नका. आता जर तुमची मुलं कॉन्व्हेंटमध्ये शिकतात तर ते तुमच्या घरी येऊन तुमच्या आईवडिलांना सांगणार आपल्या घरी की पप्पा रस्त्यानं चालल्यानंतर चॉकलेट खाल्ल्यानंतर त्याचं टर्फल बाहेर टाकायचं नाही, ते खिशात ठेवून बरोबर डस्टबिनमध्ये टाकायचं. सांगतात की नाही आपली मुलं? रस्त्याने जाताना कुठेही पान खाऊन थुंकायचं नाही. नगरपालिकेची शिळकोची जबाबदारी आहे, मान्य आहे. ग्रामपंचायतची पण जबाबदारी आहे, उपसरपंच आहे तिथे, ते पण जबाबदारी घेतात. पण नागरिक म्हणून माझा मुलगा माझ्याकडून काय संस्कार घेतो आणि मी माझ्या मुलाला काय संस्कार देतो, शासनाकडून आपण जबाबदारी ठेवली पाहिजे, शासनाकडून अपेक्षा आपण ठेवल्या पाहिजे. परंतु प्रत्येक गोष्ट शासन देईल किंवा प्रशासन देईल याच्यावर भरोसा न ठेवता प्रत्येक नागरिकांनी, आता वाळूज महानगरमध्ये आपण सगळे राहतो, सगळ्यांनी जर ठरवलं या ठिकाणी जेवढे काही मेसेज दिले, झाडं लावले पाहिजे, झाडं जगवले पाहिजे, ऑक्सिजन मिळाला पाहिजे, पाणी आपल्याला परत मिळणार नाही, पाणी आपल्यासाठी काही दिवसानंतर ते गाणं होतं, दाखवलं की आपल्या आजोबांनी वडिलांनी नदीमध्ये पाणी पाहिलं, बोरमध्ये विहिरीमध्ये पाणी पाहिलं, आता आपण नळामध्ये पाणी पाहतो. आपण ते आयुष्य जगलेलो आहे, जमिनीमध्ये शेतामध्ये गेलेलो आहे, पाण्यामध्ये भिजलेलो आहे. आपल्या मुलांना ते निसर्गाशी आपल्याला रममान करण्यासाठी हा मेसेज आजच्या कार्यक्रमातून दिलेला आहे. आपण तो मेसेज सगळ्यांनी समोर न्यायचा आहे. दुसरी गोष्ट मला ही सांगायची आहे की आईवडील आणि गुरु ह्याच्यात काय फरक आहे. आईवडील त्याला प्रेम देतात, माया देतात. त्यासोबत शिक्षक प्रेम, माया आणि ज्ञान देतात. आईची माया, वडिलाची माया मुलांसाठी आंधळी असते. उदाहरण सांगतो की एखाद्या रेल्वेमधून जर एखादा मुलगा प्रवास करत असेल छोटा आणि त्याचं बाळ खाली पडलं तर आई त्याच्यासोबत उडी मारून टाकेल, ती इकडं तिकडं विचार करणार नाही त्या बाळाला वाचवण्यासाठी. पण शिक्षक असतील, गुरु असतील तर ते ट्रेनची साखळी खेचतील. हा एक फरक असतो. गुरुजीकडे किंवा शिक्षकाकडे जेव्हा आपले मुलं शिक्षणासाठी जातात तर ते काय घेऊन घरी येतात, रोज काहीतरी त्यांच्याकडून नवीन शिकण्यासारखं असते. या कार्यक्रमामध्ये बोलण्यासारखं भरपूर आहे, पण मला माहीत आहे की आपण राहिलेले कार्यक्रम आणि तुमच्या मनातल्या भावना मला समजतात की मध्येच कुठूनही भाषण आलं. आपल्याला राहिलेले कार्यक्रम बघायचे आहेत, मुलांचे व्हिडिओ काढायचे आहेत, त्यांना टाळ्या वाजवायच्या आहेत, म्हणून त्यांना आपण सहकार्य करा, साथ द्या. कारण आयुष्यामध्ये मुलांसोबत मुलींसोबत घातलेले जे प्रेम क्षण असतात हेच तुमचे आणि त्यांच्यामध्ये इमोशनल टच असतात. एक दिवशी माझ्या छोट्या मुलीला शाळेत सोडण्यासाठी मी गेलो, ती माझ्या गळ्यात पडते, मला म्हणते पप्पा मी लग्न नाही करणार. मी म्हटलं का नाही करणार? म्हणजे मला तुम्हाला सोडून जायचं नाही. आयुष्यातले हे क्षण परत परत येत नाही. काही वडिलांना, काही त्यांच्या पत्नीने म्हणजे बळजबरी आणला असेल कार्यक्रमात, चला मुलांचा परफॉर्मन्स पाहायला आहे. किती लोक बळजबरी आलेले आहेत कार्यक्रम पाहण्यासाठी, घरच्या लोकांनी किती लोकांना घेऊन आलेले आहेत. तर बळजबरी येऊन फायदा नाही. कारण आता असं मगाशी जो डान्स झाला, उदाहरण सांगतो, उदाहरण की जे शंकर महादेव कैलासावर वर बसले होते, तर आयुष्यभर त्या मुलाला त्या वर्गामध्ये गणितात किती मार्क होते कोणाला आठवणार नाही. परंतु आम्ही या शाळेमध्ये परफॉर्मन्स केला होता. त्या शाळेमध्ये हा मुलगा महादेव बनला होता, ही मुलगी हे बनली होती आणि त्यांनी हे करताना असं केलं होतं. हीच आनंदोत्सव असतो. आनंदोत्सव छोटे छोटे असतात. लहान मुलं इथं डान्स करत असताना सरांचे आईवडील टाळ्या वाजवत होते आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर स्माईल होतं. तो आनंदोत्सव आहे. आपण कार्यक्रम संपल्यानंतर 8 दिवस
किमान 8 दिवस मोबाईलवर त्यांचे डान्स परत परत बघणार, त्यांचे DP ठेवणार. त्यांना तुम्ही तयार करून इथं आणलेलं आहे. तर हे छोटे छोटे गोष्टी ज्या असतात हा आनंदोत्सव असतो. तो आनंदोत्सव आपण या ठिकाणी साजरा करायला आपण आलेलो आहोत. आणि मला वाटतं की मला या ठिकाणी बोलावलं, प्रमुख पाहुण्याचा सन्मान केला, त्याबद्दल मी आयोजकाचे आभारी आहे. आणि या शाळेबद्दल सांगेल की केवळ हे पुस्तकी ज्ञान देऊन फायदा नाही. आपल्या मुलांना आपल्या घरी असलेल्या मोठ्या माणसांचा सन्मान करता आला पाहिजे. आईवडिलाला आईवडील म्हणून, गुरुजी म्हणून वागवता आलं पाहिजे. आयुष्यभर त्यांना काही संस्कार दिले गेले पाहिजे. तर हे सर्व या ठिकाणी शिकवलं जातं, याचा मला अभिमान आहे. आणि बाकीचं कॉम्पिटिशनची बद्दलची माहिती तुम्हाला द्यायची गरज नाही. सगळ्यांना आपला मुलगा इंजिनियर, वकील, डॉक्टर, अधिकारी करायचा आहे, त्याच्याकडून अपेक्षा ठेवा. पण एकाच मुलाकडून इंजिनियर पण झाला पाहिजे, तो डॉक्टर पण झाला पाहिजे, CA पण झाला पाहिजे अशा अपेक्षा ठेवू नका. आईवडिलांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की दरवर्षी भारतात 15 लाख मुलं इंजिनियर होतात आणि 8,000 लोकांना पण नोकरी लागत नाही. मी MIDCत 5 वर्ष रिजनल ऑफिसर म्हणून काम केलेलं आहे आपल्या इकडेच. तर इंजिनियर झालेला मुलगा 8,000 10,000वर नोकरी करण्यासाठी येत होता की सर कुठल्या तरी कंपनीमध्ये बघा काय आहे. म्हणून पालक लोकांसाठी मी संवाद साधतो आहे. आजचा कार्यक्रम मुलांसाठी चालूच आहे आणि तो चालूच असणार आहे. परंतु आपल्या मुलांची कॅपॅसिटी काय आहे ती ओळखा. दुसऱ्या मुलांसोबत त्याची तुलना करू नका. शेजाऱ्यांचा मुलगा इंजिनिअरिंगला गेला म्हणून आपला गेलाच पाहिजे अशी काही अपेक्षा त्याच्याकडून धरता कामा नये. आणि त्या कॉम्पिटिशनमध्ये त्याचं बालपण हरवणार नाही याची आपण काळजी घ्यावी. बाकी सर्वांना मी धन्यवाद देतो. नमस्कार. मोहम्मद सर फॉर मोटिवेटिंग अस. सर ने बहुत ही सरल भाषा में हमारे आज के समाज की कंडीशंस हमें समझाने की कोशिश की है. मैं आप सभी श्रोतागणों से विनंती करती हूँ कि आप सभी उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं. कारण बहुत मिलेंगे, कभी किसी की खुशी का कारण बनो. जो बांटोगे वही मिलेगा, दुख बांटो या सुख बांटो. समाज में रहना है जब इंसान को, तब क्यों ना समाज के उन्नत बनो. बस प्रेम और त्याग की भाषा हो, मिलजुल कर रहो, आगे बढ़ो. खुशी के कारण बहुत मिलेंगे, कभी किसी की खुशी का कारण बनो. यही संदेश लेकर अपनी छोटी छोटी खुशियाँ हमसे बांटने आ रहे हैं नन्हे नर्सरी के कलाकार. गीत इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी पर परफॉर्म करने. दिस सॉन्ग इंस्पायर अस टू बी सिंपल येट हैप्पी एंड करेजियस इन आवर लाइफ. It is also inspire us to love the less fortunate one and earth unconditionally. So let's welcome them with a huge round of applause. मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तालियों बजाकर सभी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएं. और मेरा नाम चिन्मय. उफ, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बड़ा परेशान हूँ. क्यों? वजह क्या है तुम्हारी परेशानी की? ऐसा लगता है कि मेरे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए पर मेरे पास सारी नहीं है. तो क्या हुआ? हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि आज मुश्किल है तो कल थोड़ा अच्छा होगा. इसलिए उम्मीद मत हारना, क्योंकि आने वाला कल ज़रूर बेहतरीन होगा. इस तरह छोटी छोटी खुशियों को समेट के हम बड़ा आशिया बना सकते हैं. ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. चलिए इसी खुशी को महसूस करने के लिए मैं नर्सरी क्लास के नन्हे मुन्ने छात्र को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ. गीत की बोल है इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया. चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए. आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमी. थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये
आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये सभी थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया This was indeed a beautiful and cute performance. Everyone, please give them a huge round of applause. आपके सामने ये नन्हे मुन्ने बालकों ने बहुत ही प्यारा सा परफॉर्मेंस दिया है, तो अगर आप सभी को यह पसंद आया होगा तो ज़ोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मेरे राइट हैंड साइड पर कूपन काउंटर प्रेजेंट है। आप सभी वहाँ पर जाकर कूपन ले सकते हैं और काफ़ी बम्पर प्राइज़ जीत सकते हैं। प्राइजेस मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगी। तो फर्स्ट प्राइज़ है साइकिल, सेकंड प्राइज़ जो आगे मिलने वाला है वो है मिक्सर, और ऐसे कई सारे आपको बम्पर प्राइज मिल सकते हैं। तो आप सभी फॉर जंगल बुक फ्रॉम द सेटिंग एंड सराउंडिंग ऑफ द पेंच टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। मोगली द लिटिल हीरो ऑफ जंगल बुक हैज़ बिन द फेवरेट अमॉन्ग द किड्स फॉर ईयर। बट कैन यू ऑल रिकॉल द नेम ऑफ अदर कैरेक्टर्स ऑफ दिस वंडरफुल स्टोरी? क्या आप में से कोई ये जो जंगल बात चली है पता चला है चड्डी पहनकर फूल खिला है? तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन नन्हे कलाकारों का। और चिंता मत कीजिए, ये लोग चड्डी पहनकर नहीं, हाफ पैंट पहनकर आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं। और मेरा नाम आशीष है। कोई बहाना ना कोई देरी होगा उजाला अपना रात अंधेरी होगी, खुल जाएंगे मनोरंजन के पिटारे, हर घड़ी आपके हंसने की बारी होगी। तो आपकी यही खुशी को बढ़ावा देने आ रहे हैं जूनियर किड्स बच्चे जंगल जंगल सॉन्ग के साथ। बच्चों की मोर की लहरी हिरन सुनहरी उछल
performance, their animals. I will request all of you to put your hands together for our little star. Globalities have proved their talent in all streams, and to appreciate them for their hard work is our duty. Now, it's time to acknowledge the talent of our beaming buddies by beginning the prize distribution. First of all, I would like to announce the name of the winning team of quiz competition. Before that, I would like to call upon stage our Honorable Chief Guest Soham Sir and Mrs. Asmita Varshit Borde to give away the prize. Sir and ma'am, I request you to come on the stage to give away the prize. 2022 to 2023 is Team Prithvi. So give them a huge round of applause, everyone. I will request all the team members to come on stage and receive the prize. First of all, I would like to call upon stage Shraddha Bakle. The second team member is Jaydeep Pohakar. Give them a huge round of applause, everyone. The third prize is for Jay Borse. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जोरदार तालियों से इन सभी के हार्डवर्क को अप्रिशिएट करें. The next member of the team is Disha Kamble. I would request everyone to cheer them up with a huge round of applause. Congratulations to all the team members of Prithvi. Now, I would also like to call upon stage the master of this house, Ms. Swati Shekhawat. एक बार मैम के हार्डवर्क के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. Now, I would like to announce the winner of Spell Bee competition. The Spell Bee competition is conducted to give students a platform to learn spelling in different ways, enrich their vocabulary, learning concept and developing skill. So the winner of Spell Bee competition is again Prithvi House. So give them a huge round of applause. I would like to call upon stage the team members. The team members are Shivraj Malkar, Jay Borse, Shraddha Bakle. Yes, everyone, please cheer them up with a huge round of applause. जोरदार तालियों से उन्हें मोटिवेट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए उनके हार्डवर्क के लिए. And the next member is Disha Kamble. We appreciate your win, students. Congratulations to all of you. I would also like to call upon stage the house master of Prithvi House, Ms. Swati Shekhawat. तालियों की गूंज थमनी नहीं चाहिए. इन्होंने पूरे साल भर मेहनत करके आज ये ट्रॉफी हासिल की है. तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग तालियां बजाकर इन्हें मोटिवेट करते रहिए, इन्हें अप्रिशिएट करते रहिए. Now, I would like to announce the fifth winner of the lucky draw. तो चलिए देखते हैं किसकी किस्मत चमकी है आज. And the winner of fifth coupon prize is. Can I have the name of the winner? बहुत तेज हो रही है. किसी का भी नाम आ सकता है और कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वो मिलना ही होता है. तो देखते हैं आज ये कूपन प्राइस किसकी किस्मत में है. एंड द विनर इज कूपन नंबर 34 दैट बिलोंग्स टू सिमरन यादव. इफ द स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट हियर, पेरेंट्स कैन ऑल्सो कम ऑन द स्टेज. यस, सो सिमरन की किस्मत के लिए जोरदार तालियां बजाइए सभी.
तो ये जो थर्ड प्राइज जो कि है एक आयरन फ्रेस जिससे आप कपड़ों को इस्त्री करते हैं, वो मिली है सिमरन को। और आप लोग ऐसे और बम्पर प्राइज जीत सकते हैं। मेरे राइट हैंड साइड पर एक कूपन काउंटर है, वहाँ से कूपन बाय करके, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बम्पर प्राइज और बाकी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सिमरन। Our honorable chief guest, Soham sir, Varshit ma'am, and sir to take your seats again. बढ़ने से पहले हमारा जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो कुछ स्पेशल गेस्ट को डेडिकेटेड है। सो मैं उन गेस्ट को बोलना चाहूँगी कि वो आगे आ जाएं। द गेस्ट आर मिस्टर एंड मिसेज अलका शेलार एंड मिस्टर राहुल बोराड़े। प्लीज़ सर एंड मैम, अगर आप ऑडियंस में हैं तो प्लीज़ आप आगे आ जाइए, बिकॉज दिस सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर यू। मिस्टर राहुल बोराड़े सर एंड मिसेज अलका शेलार मैम, अगर आप ऑडियंस में यहाँ पे बैठे हैं तो आप प्लीज़ आगे आ जाइए, क्योंकि जो अगला गाना है वो स्पेशली आपके लिए रखा गया है। बच्चे आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप ऑडियंस में बैठे हैं तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप आगे आ जाइए। द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन दैट एस्केप द वायरस। It means God help those who maintain cleanliness. For this I want to say, cleanliness is next to godliness. No doubt, everyone wants to live a healthy life, and such life we all can get by refuse what you do not need. Refuse what you do not need. Reduce what you do need. Reuse what you consume. Recycle what cannot refuse. Reduce और reuse and नमस्ते, मेरा नाम ऋषिकेश वाली। हाँ, वो तो गाना सुनते ही पता चलता है। क्या आपको पता है कहाँ से आया ये गीत और क्यों? कहे ना, सुनो। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। ये गीत मध्य प्रदेश के मंडला शहर के शिक्षक श्याम बैरागी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का ख्वाब पूरा करने की इच्छा से प्रेरित होकर लिखा था। अच्छा, चलो हम भी प्रतिज्ञा करते हैं, एक कदम स्वच्छता की तरफ उठा के अपना कचरा अलग अलग करके गाड़ी में डालेंगे। और आप भी। धन्यवाद। आजचे आपले दुसरे अतिथी सिटीजन, हम लोग कितने केयरलेस है। हम लोग कचरे को कभी इधर फेंकते हैं, उधर फेंक देते हैं, बिना ध्यान दिए कि वो हमारे नेचर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो यही डांस आपको यहाँ पर बताएगा उसका इम्पोर्टेंस, कि आप वेस्ट को कैसे अच्छे से संभाल कर दे सकते हैं जो कचरे वाले होते हैं उन्हें। कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुन बेना, मेरा है यह कहना, सब्जी के छिलके में कतरन जो पल के, घर में पड़ी धूल डस्ट हमको देता भारी कष्ट, पूजन के बाद बची राख फूल पाती है,
भी जा बात मेरी देख यूं न टाल। अरे तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कागज के टुकड़े हैं ये अपने दुखड़े, प्लास्टिक बेकार पड़ी यूं न पॉलीथीन रखो, घर में डस्टबिन रखो, 1 2 3 रखो, कुछ सूखे कुछ गीले अलग अलग कचरे रखो, टूटे कांच की लिट्टी अपने घर न कचरे रखो, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख खुद के तन की करना है खुद को ही देखभाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। क्या बात है बच्चों, बहुत खूब। आज फिर से तालियां तो बनती है।